Trinity B1 ISC1 4 Skills Test. CELT Secure English Language Tests. B1 English Test ISC1 Skilled Worker, Health and Care Worker, Scale Up Worker, Student Visas. इसको कर लेते हैं, ये मल्टी टेक्स्ट है। अच्छा, ये मल्टी टेक्स्ट है। हाँ सेकंड पार्ट है ना ये, है ना? हाँ जी। ओके। हाँ ये टेक्स्ट ये है, इसको पढ़ें। क्या इसमें आपको समझ आ रहा है? रीड फॉर द फोर टेक्स्ट एंड आंसर। ये आ रहा है सोशल मीडिया, व्हाट टीन्स पोस्ट 2008 विद अस 2015। हाँ ये इस सॉरी VS का मतलब होता है वर्सेस वर्सेस 2015। यस। या सॉरी। हम्म। इसमें आ रहा फोटो ऑफ योरसेल्फ, ओके स्कूल नेम, ठीक है। ईमेल एड्रेस, ओके मोबाइल फोन नंबर। जी और ये बता रहा है 2018 को ब्लू से मार्क कर रहा है और 2015 को रेड से। ठीक है। So if I would ask you, what do most teenagers posted in the year 2008 on social media, then what would be your answer in English? Most in 2008 in social media, yeah. Yes. Photos of yourself. Yes, photos of themselves. Okay, because Yeah. themselves. Good job. Okay, and now we'll move to the second paragraph. Although not many apologies, not many teenagers posted their phone numbers in the year 2008, but then they started posting their phone number in the year 2015. Okay? Okay. Yes. So in this, there is an increase. In this also, there's an increase. In this also, there's an increase. And in this also, there is an increase in the year 2015. Okay, Okay. now we'll move to the next part. This is a paragraph, and if there will be any new words, I will explain to you and give you the definition. Okay. The way that young people communicate has changed greatly since a generation ago. These days, 60% of those aged 10 to 15 use social networking website or apps. The number increase as children get older, peaking at the age of 15. At this age, 4/5 engage in social networking of some kind. This type of communication is clearly important for today's youth, and many feel that it has a positive impact on their lives. 22% of children aged 10 to 15 feel that they can express themselves more freely online than they can in day-to-day life. Many say that their social networking profile describe them posit- posit- positively. On the other hand, a significant number of young people have suffered from cyberbullying, cyberbullying, and many other fear that would be left out of their social circle if they did not regularly frequent social networking websites. The way that young people communicate has changed greatly since a generation ago. जो यंग पीपल हैं वो जो पिछली जो जनरेशन थी उससे जी जी। चेंज है उनकी कम्युनिकेट यानी कि उनका माइंड यानी कि उनकी सोच। जी
the way that young people communicate has changed greatly since a generation ago. Of course, this means that the way new people communicate is different from the last generation. These days, 60% of those aged 10 to 15 use social networking website or apps. जो आजकल के लोग हैं वो 60% जो उनसे हैं वो सोशल नेटवर्किंग यूज करते हैं इन द एज ऑफ 10 to 15 जी और द नंबर इंक्रीज एज चिल्ड्रन गेट ओल्डर पीकिंग एट द एज ऑफ 15 यानी कि जो नंबर ऑफ इंक्रीज हो रहा है चिल्ड्रन में गेट ओल्डर हो रहे हैं क्योंकि मोबाइल की वजह से इन द एज ऑफ 15 नेटवर्किंग की वजह द नंबर इंक्रीजेस देखें वो पहले कह रहे 60% लोग जो हैं वो 10 से 15 साल की उम्र में वेबसाइट्स यूज करते हैं, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स जिसमें इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, और बच्चे यूट्यूब भी यूज करते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया नेटवर्किंग 10 से लेके 15 साल तक के बीच में। ठीक है, ठीक लेकिन है वो कहते हैं जैसे बच्चे थोड़े द नंबर इंक्रीजेस, वो जो 60% है वो नंबर इंक्रीज हो जाता है जैसे ही बच्चे 15 साल के होते हैं। ठीक है, अब देखिए ठीक 10 है से 15, 15 से ऊपर जाते हैं तो वो नंबर बढ़ जाता है एट दिस एज। ठीक है आगे At this age, 4/5 engage in social networking of some kind. This type of communication is clearly important for today's youth, and many feel that it has a positive impact on their life. 54/5 engage in फोर social फिफ्थ networking. मतलब होता है ऐसे कि एट दिस एज 4/5 इंगेज। देखें, आपने देखा होगा 4 में से 5। ठीक है, तो हाँ जी मतलब 5 में से जो 4 है ना, वो इंगेज होता है सोशल नेटवर्किंग ऑफ सम काइंड। ये मतलब 15 साल के बच्चों की बात कर रहा है कि 5 में से 4 बच्चे जो हैं वो सोशल नेटवर्किंग ऑफ सम काइंड कर रहे होते हैं। 4/5 इंगेज। ठीक है, 4/5 का ये मतलब है 4 में से 5, 5 में से 4। ठीक है यानी कि अगर 5 बंदों को कंपैरिजन किया जाए तो उनमें से 4 बच्चे जो है वो सोशल मीडिया यूज कर रहे हाँ होते हैं जी बिल्कुल। आगे आगे ये 22% ऑफ चाइल्ड नहीं, ये दिस एज टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज क्लियरली इंपॉर्टेंट फॉर टुडेज यूथ। जो ये जो सोशल नेटवर्किंग है ये आजकल के लोगों के लिए क्लियरली बहुत इंपॉर्टेंट है, यूथ के लिए, यंग लोगों के लिए। ठीक है, और मेनी फील दैट इट हैज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन देयर लाइफ्स। इम्पैक्ट होता है असर, इन्फ्लुएंस। अब मुझे नहीं पता आपने कभी इन्फ्लुएंस वर्ड पढ़ा है या बोला है या सुना है या नहीं। तो इन्फ्लुएंस एक वर्ड होता है, आपको जरूर मिलेगा पढ़ने के लिए, और इम्पैक्ट एक वर्ड होता है। और इम्पैक्ट का तो मतलब पता ही है हाँ जी, इम्पैक्ट असर उसका मतलब होता है। असर जो इन्फ्लुएंस उसका और मतलब इम्पैक्ट सेम ही होता है। हाँ जी तो मतलब ये कि उसका पॉजिटिव असर होता है उनकी लाइफ्स पे। अच्छा आगे बताएं। 22% ऑफ चिल्ड्रन 22% of children aged 10 to 15 feel that they can express themselves more freely online than they can in day-to-day life. जी, व्हाट डज इट मीन? उसने कहा कि 22% जो चिल्ड्रन है हाँ जी, वो 10 to 15 एज में feel that they can express themselves more freely online than they can in day-to-day life. वो कह रहे हैं कि यानी कि ऑनलाइन ये क्या मतलब ऑनलाइन देन दे कैन इन डे टू डे लाइफ इनके वो फील फ्री करते हैं ऑनलाइन यानी कि हाँ जी, मतलब ये है कि 22% जो बच्चे हैं ना, जो 10 से 15 साल की एज के हैं, वो ज्यादा अपने आप को फ्री फील करते हैं ऑनलाइन अपनी दिल की बात बताने में, बजाय कि अपनी डे टू डे जिंदगी में माँ बाप से या बहन भाइयों से बात करने से। ठीक है, तो वो ज्यादा जो है ना क्लियरली और एक्सप्रेसिव, आपने देखा ही होगा आजकल बच्चे कैसे कैसे स्टेटस लगाते हैं। ठीक है, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, एक्सप्रेस होता है अपने अपनी फीलिंग्स को बता पाते हैं सोशल मीडिया पे, बजाय के
अपनी रेगुलर जिंदगी के अंदर। Okay. हम्म। Many says that their social networking profiles describe them positively. वो मैं कुछ ज्यादा बच्चे ये कहते हैं कि सोशल नेटवर्किंग प्रोफाइल डिस्क्राइब देम पॉजिटिवली, यानी कि हमें ये पॉजिटिवली हमारी लाइफ में बड़ा पॉजिटिव रोल अदा करते हैं ना सोशल नेटवर्किंग नहीं नहीं, प्रोफाइल्स। मैंने से लोग कहते हैं कि जो ये बच्चे हैं इनकी जो सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या जहां पे भी, वो उनको पॉजिटिवली शो करते हैं। ठीक है, मतलब हम्म। जैसे कि आप अगर 15 साल के हैं, आपने अपनी प्रोफाइल बनाई हो या आपने उसके ऊपर लिखा हुआ है हार्ड वर्किंग गेमर, आप अपने आप को कहते हैं हार्ड वर्किंग गेमर, तो मतलब वो प्रोफाइल आपको की पॉजिटिव साइड दिखा रही है, ये है। ऑन द अदर हैंड significant number of सिग्निफिकेंट young बहुत people इंपॉर्टेंट B1 लेवल वर्ड है। इसका इम्पोर्टेंट, इसका भी मतलब इम्पोर्टेंट ही होता है। ठीक है, तो इस यहाँ पे अगर इसको देखेंगे ना, सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ यंग पीपल, तो सिग्निफिकेंट का मतलब होता है ज्यादा। ठीक है, जिसको ठीक है। नोटिसेबल, नोटिसेबल का मतलब है काफी, काफी, इन मतलब काफी ज्यादा, ज्यादा। ठीक है, ये होता है इसका मतलब सिग्निफिकेंट का। ओके। सिग्निफिकेंट का मतलब इम्पोर्टेंट भी होता है, यूजफुल भी होता है, नोटिसेबल भी होता है। देखिए आप कहते हैं कि भाई मेरे लिए तो मेरी जॉब बहुत सिग्निफिकेंट है, ठीक है, मेरे लिए तो बहुत जरूरी है। ठीक है, और यहाँ पे अगर नंबर है तो सिग्निफिकेंट नंबर वो होता है जो जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसलिए इसको बड़ा नंबर कहते हैं, काफी ज्यादा। ठीक हो गया। हम्म। Number of young people have served from cyber सफर्ड फ्रॉम, suffered, yeah, सफर्ड क्या होता है? people have suffered यानी कि गुजर रहे होते हैं, यानी कि ये मतलब नहीं कि वो उर्दू वाला सफर है, इंग्लिश वाला सफर बताएं। सफर्ड का people मतलब होता है, देखिए पीपल हैव सफर्ड फ्रॉम मतलब शिकार होना। जैसे आप कभी अपने बचपन में अपने टीचर को लिखते थे जब स्कूल नहीं जाते थे, तो कहते थे आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, कि मुझे फीवर हो गया है, शिकार हो गया हूं मैं फीवर का। तो यहाँ पे ही आप उसका मतलब समझ सकते हैं दैट यंग पीपल हैव सफर्ड फ्रॉम, वो शिकार बन चुके हैं साइबर बुलिंग का। ठीक है, साइबर बुलिंग जाहिर सी बात है कोई बुरी चीज है तो उसका शिकार बने, है ना। बिल्कुल सही। बुखार का से भी सफरिंग होती है। ठीक है, तो ये साइबर बुलिंग का मतलब होता है ऑनलाइन बुलिंग। आप टिकटॉक देखते हैं ना? नहीं, कभी तो देखे होंगे ना टिकटॉक। बस मोबाइल में आई है, टाइम नहीं होता, बस जॉब पे होते हैं, थोड़ी थोड़ी कभी कभी देख लेते चले, उधर पाकिस्तान में तो देखते होंगे ना। हैं। हाँ, पाकिस्तान में जब पाकिस्तान में थे तब पता ही नहीं था इस ऐप का। तो तब क्या देखते थे? फेसबुक। लाइक किया है उसका, तो यही है ना कि जो तुम कह रहे हो सही कह रहे हो। ठीक है, साइबर हम्म। बुलिंग का मतलब है ऑनलाइन किसी को बुली करना। बुली का मतलब ये होता है कि किसी को बुरा फील करवाना। अब बुली तो रिश्तेदारों में, आप तो आई होप सो यू आर फ्रॉम लाहौर, समझ आ रही है आपको। साइबर का मतलब होता है ऑनलाइन, आपने कभी सुना होगा साइबर क्राइम्स, ऑनलाइन क्राइम्स, साइबर। ओके। तो बुलिंग जो है ना एक बड़ा कॉमन सा वर्ड है, जो कि बहुत ही कॉमन है। जुत्ते मारना और ये सारा कुछ करना, ये बुली होता है किसी को, क्योंकि वो अच्छा तो नहीं ना लगता किसी को। अच्छा, आगे। सॉरी, एक सेकंड, स्क्रीन किधर गई? अच्छा, ये आ गया। And many others fear that they would be left out of their social circle if they did not regularly frequent social networking website. जी, बहुत सारे लोग जो है साइबर बुलिंग से सफर करते हैं और उनको डर लगता है। कुछ लोगों को डर लगता है कि अगर वो
सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करते या सोशल सर्कल नहीं है कोई उनका, तो वो लेफ्ट आउट फील करेंगे। अब लेफ्ट आउट फीलिंग होती है एक, अगर आपको आइडिया हो, जैसे आप हैप्पी फील करते हैं, सैड फील करते हैं, वैसे भी लेफ्ट आउट एक फीलिंग होती है। जैसे कि आपकी कजिन की शादी है, ठीक है, तो सबको बुला लिया लेकिन आपको नहीं बुलाया, ठीक है, तो आप क्या फील करेंगे? लेफ्ट आउट हम्म, सोशल सर्कल में से। ठीक है, तो इसी तरह जो लोग अभी सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करते या सोशल नेटवर्किंग नहीं करते, वो क्या फील करते हैं? लेफ्ट आउट। उनको डर लगता है कि हमारा तो कोई सर्कल ही नहीं है, अगर यहाँ पे भी बात नहीं करेंगे तो फिर कहाँ बात करेंगे। बिल्कुल सही है। हाँ, तो आगे, इफ दे डिडंट रेगुलरली फ्रीक्वेंट सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट, वही बात कह रहा है, अगर वो रेगुलरली नहीं यूज करते तो वो लेफ्ट आउट फील करते हैं। उनको लगता है कि अगर कहाँ पे फिर हम सोशल अपना सर्कल जो है वो बिल्ड करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो मतलब इसमें उन्होंने एक अच्छी साइड भी दिखाई हुई है सोशल मीडिया नेटवर्किंग की टीनेज बच्चों के लिए, और साथ में एक नेगेटिव साइड भी दिखाई हुई है जो कि है साइबर बुलिंग, और उनका अकेला महसूस करना और जबरदस्ती सोशल नेटवर्किंग करना, क्योंकि उनको डर लगता है हम अकेले ना रह जाएं। ठीक है, अगर देखो चार दोस्त हैं, चारों फेसबुक नहीं सॉरी, चार दोस्त हैं उसमें से तीन फेसबुक यूज करते हैं और एक नहीं करता, तो वो जब आप लोग फेसबुक की बातें करोगे तो वो जो चौथा है वो तो लेफ्ट आउट ही फील करेगा ना, उसको पता ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो इस तरह से है ये। आगे टेक्स्ट सी। Today we have had a lesson to at school about cyberbullying. My teacher says that about a quarter of teenagers today do it, but I cannot believe that. I have never been mean to anyone over the internet and none of my friends have either. Cyberbullying के हवाले से लेसन लिया स्कूल में. हम्म। My teacher said that about a quarter of teenagers today do it. मेरी जो टीचर है उसने कहा है कि आज क्वार्टर ऑफ टीनेजर यानी कि 1/4 टीनेजर हम्म। जो हैं उन्होंने ये यानी कि यूज किया है यानी कि इन अ स्कूल. हाँ जी। बट आई कैन नॉट बिलीव दैट. मगर मैं इस पे यकीन नहीं करता. आई हैव नेवर बीन मीन टू एनीवन ओवर द इंटरनेट एंड नन ऑफ माय फ्रेंड्स हैव एदर. वो कहते हैं कि मुझे इस बात पे यकीन नहीं है क्योंकि मेरे दोस्तों के पास भी नेट नहीं है और दूसरे लोगों के पास भी इंटरनेट नहीं था. हाँ, और बस आगे दूसरा. अच्छा, एक मिनट, इसमें ना मतलब ये है कि मेन ये चीज है कि जेस और लूसिया दोनों आपस में बातें कर रही हैं, ठीक है। लूसिया ओके. जेस कहती है, एक दूसरे से बातें कर रही है ना, वो जेस कहती है कि टुडे वी हैड अ लेसन एट स्कूल अबाउट साइबर बुलिंग, आज हमें स्कूल में साइबर बुलिंग से रिलेटेड लेसन मिला है। तो मेरी टीचर कहती है कि वन अबाउट अ क्वार्टर ऑफ टीनेजर्स टुडे डू इट, मतलब क्वार्टर ऑफ द टीनेजर्स जो हैं वो करते हैं, ठीक है। 1/4 आप कर लें कि वो जो है वो करते हैं साइबर बुलिंग। या आई नो द क्वार्टर पर मोर. आई कांट बिलीव दैट, वो कहती है मैं यकीन नहीं कर सकती, आई हैव नेवर बीन मीन टू एनीवन ओवर द इंटरनेट। वो कहती है मैं तो कभी किसी के साथ मीन हुई नहीं, मीन का मतलब होता है रूड होना, ठीक है। एंड नन ऑफ माई फ्रेंड्स हैव आइदर, और ना ही मेरे दोस्तों ने कभी रूड किया है। मतलब अपनी तरफ से कह रही है जैस कि मैंने कभी साइबर बुलिंग नहीं की। तो लूसिया कहती है रियली, सच? Haven't you ever posted a bad photo of someone online? अब वो साइबर बुलिंग की डेफिनेशन बता रही है कि क्या तुमने कभी किसी की बुरी फोटो नहीं लगाई, जैसे कि आपने देखा होगा लड़कियां भी ऐसे ही करती हैं, लड़के भी अब खुद से ही लग रही होती है, साथ वाले की आंखें एक बंद होती है फिर भी लगा देते हैं फोटो, ऐसे होता है ना। जी जी. तो वो भी बुलिंग होती है, वो साइबर बुलिंग होती है। अगले बंदे को आपको आप खुद से ही लग रहे हो और दूसरा बंदा नहीं सही लग रहा, ठीक है, और आप उसको सोशल मीडिया पे ले आते हो। समझ आ रही है? जी जी. बहुत कॉमन है। और कहती है दूसरी फॉर्म है साइबर बुलिंग की कि किसी ने कोई बुरा कमेंट किया, रूड, ठीक है,
तो आप उस कमेंट को लाइक करते हो तो आप भी तो कंट्रीब्यूट कर रहे हो ना साइबर बुलिंग में। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो जेस बी कहती है वेल यस ऑफ कोर्स एवरीवन डज दैट, हर कोई ऐसे करता है, बट वो तो बस फन होता है, जस्ट फॉर हैविंग फन। लूसिया कहती है नहीं, आई डोंट थिंक सो, के आपको नहीं पता कि इससे लोगों को कैसा फील होता है। ठीक है, सही। तो जेस बी कहती है आई सपोज यूर राइट, मुझे लगता है आप सही कह रही हो, और मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। अभी ये देखें, टिकटॉक है या यूट्यूब है, मैं भी सोशल मीडिया पे हूँ, मुझे भी लोग बातें करते हैं, ठीक है, तो उस चीज को हैंडल करने के लिए भी थोड़ा सा चाहिए होता है कि अच्छा ये लोग, देखिए हर बंदे की अपनी सोच होती है, लेकिन ये लोगों को अभी एजुकेट नहीं हुए हुए कि साइबर बुलिंग क्या होती है, लोगों को पता हो तो लोग ना करें। Many people worry that teenagers spend too much time online. One study said that they spend more time on the internet that they do sleeping. However, I believe that they spend a lot of this time doing useful activities that help them work so them work आगे है so and relax. To find out how the internet helps student, I conducted the following study. I asked 20 students not to use the internet in their free time for 2 weeks. Afterwards, I gave them a questionnaire which asked them how felt about their work, social life, and free time. I also gave the questionnaire to 20 students who had used the internet as usual for 2 weeks. I found out the students felt more relaxed without the internet because they felt that they had much more free time. However, most said they said they thought their schoolwork suffered and several felt they were missing out on their social life. इसका भी मैं जल्दी से आपको समझा देती हूँ। मैनी पीपल वरी दैट टीनेजर्स स्पेंड टू मच टाइम ऑनलाइन, बहुत सारे लोग जो हैं वो डरते हैं कि टीनेजर्स बहुत सारा टाइम ऑनलाइन स्पेंड कर देते हैं। वन स्टडी सेड दैट, एक स्टडी ये कहती है कि दे स्पेंड मोर टाइम ऑन इंटरनेट देन दे डू स्लीपिंग, सोने से ज्यादा लोग इंटरनेट पे टाइम स्पेंड करते हैं। हाउएवर आई बिलीव दैट दे स्पेंड अ लॉट ऑफ देयर टाइम डूइंग यूजफुल एक्टिविटीज, वो कहता है कि ज्यादातर जो लोग हैं वो यूजफुल एक्टिविटीज करने पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं, जैसे कि वो जो यंग बच्चे हैं या वर्क से रिलेटेड या सोशलाइज करने के लिए या रिलैक्स करने के लिए। टू फाइंड आउट हाउ द इंटरनेट हेल्प स्टूडेंट्स आई कंडक्टेड द फॉलोइंग स्टडी, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया कि जो स्टूडेंट्स हैं या जो टीनेजर्स हैं उनको इंटरनेट कैसे हेल्प कर सकता है, तो उसके लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने 20 स्टूडेंट्स को बोला कि आपने इंटरनेट फ्री टाइम में 2 हफ्तों के लिए इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। तो Okay. आफ्टरवर्ड्स उसने उनको एक क्वेश्चनेयर दिया, 2 हफ्ते गुजरने के बाद उसको उनको क्या दिया, एक, Questionnaire. हाँ, और उनको उनको पूछा कि अभी आस्क देम हाउ दे फेल्ट अबाउट देयर वर्क, उनको कैसा महसूस हुआ अपने काम से रिलेटेड, अपनी सोशल लाइफ से रिलेटेड और उनके फ्री टाइम से रिलेटेड। और जो क्वेश्चनेयर उन लोगों को भी दिया जो कि आमतौर पे 2 हफ्ते तक इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे थे, मतलब एक्सपेरिमेंट ये था, 20 लोगों ने नहीं किया और 20 लोगों ने 2 हफ्ते तक किया फ्री टाइम में, ठीक है। तो उसने, क्वेश्चनेयर का मतलब होता है क्विज, जैसे आप कभी किसी रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं ना तो वो ले आते हैं एक पेपर सा, कहते हैं खाने की क्वालिटी कैसी थी, सर्विस कैसी थी, उसको क्वेश्चनेयर बोलते हैं। तो वो कहते हैं मुझे एक्सपेरिमेंट का ये रिजल्ट पता चला कि जो बच्चों ने इंटरनेट नहीं यूज किया था दे वर मोर रिलैक्स्ड, ठीक है, Mhm. क्योंकि उनको लगा कि उनके पास तो बहुत सारा फ्री टाइम है। लेकिन उनकी एक शिकायत थी, जिन्होंने इंटरनेट नहीं यूज किया, कि वो स्कूल के काम में पीछे रह गए, और उनको ये भी लगा कि वो दोस्तों से या अपनी सोशल लाइफ के साथ कैचअप नहीं कर सके। ये एक्सपेरिमेंट था, Okay. ठीक है। अब इसमें सारा उर्दू में बता दिया है आपको, ठीक है, कुछ इसमें कोई नए वर्ड्स भी नहीं है ज्यादा, ये कंडक्टेड शायद आपने कभी सुना होगा।
कंडक्टेड का मतलब होता है करना। सही। अब ये वेबसाइट मैं आपको दूंगी, आप चीटिंग करे बिना ये सारे सवाल जो हैं ये करेंगे। इसमें पहले मैच द हेडिंग करेंगे आप, ठीक है, जब भी टाइम मिलेगा, कल कर लीजिएगा जब भी आपको टाइम लगे। फिर आप ये करेंगे और उसके बाद अपने जवाबों को ऐसे करके चेक कर लेंगे। पहले आपने करना है चेक आंसर्स, ठीक है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि मेरे कहाँ पे क्रॉस आएगा। फिर आपने सी आंसर्स करना है। पहले क्या करना है, चेक आंसर्स, क्योंकि जब तक आप ओके। कंप्लीट नहीं करेंगे आंसर्स आपके सामने आएंगे ही नहीं, ठीक है। जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चंस पे जाएंगे और वहां पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगी। वो भी जब तक आप करेंगे नहीं आप आंसर्स देख नहीं सकते, ठीक है। तो ये वेबसाइट, ये वाला लेसन जो है मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, ये आपने एज अ होमवर्क कर लेना है।